if I ask you this graph जो हमने किए थे earlier, moving with the constant positive velocity, moving with the constant negative velocity and at rest. ये पॉजिटिव वेलोसिटी थी, क्या था, ये पोजीशन टाइम ग्राफ थे ये तीनों, है ना. नाउ इफ आई आस्क यू टू कन्वर्ट ऑल दीज थ्री ग्राफ्स इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैन यू डू दैट? इसको वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट करना है, इसको भी वेलोसिटी टाइम में, इसको भी वेलोसिटी टाइम में. कैन इट बी डन? कैन यू ट्राई हियर इटसेल्फ? जस्ट ट्राई इन योर नोटबुक. Think what kind of graph will be there. Convert all the three graphs in velocity time graph. बोले फर्स्ट का कैसे आएगा? Can you just tell me somebody what kind of graph will be there? Like this, straight line or parallel to time axis. as like this? As well. Okay, since it is constant velocity, है ना, we are written here moving with constant positive velocity. So sudden constant positive velocity, you can take it like this. Okay. All right, this is done. What about next one? Sir, it will be the option B, that is going down towards the time. Going down like this. So both are same then. ये भी same है, ये भी same है. What is the difference? Negative velocity negative will be downward. Negative downward Parallel means time axis. parallel to time axis. Negative downward means fourth quadrant. You want to say in this quadrant? Yes, sir. Yes, sir. Okay, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस बी लिखेंगे ना. So sudden negative velocity like this. Clear? Okay, this is okay, fine. Clear to everyone? Because this is negative velocity. All right. Time axis So पर ही बनेगा. टाइम एक्सिस पर ही रहेगा ना. अगर सपोज यहाँ पे टाइम एक्सिस पर ही रहेगा ऐसे, रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये जीरो वेलोसिटी का लाइन. लाइन विल बी कोइंसाइडिंग विद द टाइम एक्सिस. और व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? अगर मैं बोलूं इनको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो तो तीनों का एक्सेलरेशन जीरो है तो टाइम एक्सिस पर रहेगा. हाँ, तीनों का एक्सेलरेशन, वी आर नॉट ड्राइंग इट. देखो तीनों का एक्सेलरेशन जीरो, ये ए है, ये टी है. इसका ग्राफ भी ऐसे आएगा, इसमें भी ऐसे ही आएगा, है ना. इसमें भी टाइम एक्सिस पर ही रहेगा, है ना. Yes, So we are sir. not drawing it because it is zero. The acceleration is not there, so it will be coinciding with the time axis. जैसे इसमें, ठीक है. Clear? तो little bit we can do variations so that you can think differently. एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट भी करना आना चाहिए ना. We should be able to understand what is the how to convert it, है ना. Clear? Anybody has any doubt in this? Just we have done it. Extra point from the textbook example. Particularly this was slightly different, है ना. ये वाले में थोड़ा सा तुम लोगों को डाउट हुआ होगा. नीचे जाएगा ना. This is negative velocity. This Yes, is sir. positive velocity. If it is constant negative velocity, then it will go down. हाँ नहीं, constant ही है. It is constant negative velocity. यहाँ पे देखो मैं, because angle जो slope है ना, if you don't change this angle, if this angle remains constant, तो velocity remains constant. एक यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रहा है, पोजीशन यूनिफॉर्म रेट से नीचे जा रहा है. इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल, बट डिस्प्लेसमेंट मतलब इट इज जस्ट डिक्रीजिंग, है ना. तो इसका मतलब क्या है? ओके, आई विल शो यू द रियल लाइफ सिचुएशन. कैसे होगा? देखो ऐसे होगा. ये सेकंड केस है, मैं शोइंग यू. ये ओरिजिन है, कार जो है, कार इज कमिंग दिस साइड. थोड़ा सा कार का, ओके जस्ट, हाँ, कार इज कमिंग टुवर्ड द ओरिजिन. इसमें इसमें तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी की नेगेटिव है. व्हेन कार, फर्स्ट केस में क्या होगा? कार इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन.
like this, it is going away from the origin. इसलिए पॉजिटिव पोजीशंस पॉजिटिव आ रही है. क्वेश्चन मतलब इसमें भी पॉजिटिव है फिलहाल, डिक्रीज होती जा रही है. ओरिजिन की जब इस तरफ चला जाएगा तो ग्राफ विल कम डाउन लाइक दिस. तो ये थोड़ा बहुत you have to give a thought for the graphs, otherwise there will be mix up. All right, so let us see the homework. Previously also we left one homework, we'll discuss that. This they were done, they were done. ये हो गए थे ना? Yes, sir. Okay, this was also done. Now one was left out yesterday, which was this one. ये छूट गया था, तो इसको भी कर सकते हैं. Some of you done it right. So covers half of the distance. Suppose this is first part and second part. First one is done with the constant speed 80. Second one is 120. So same again, average velocity, average speed will be equal to average velocity because direction नहीं change हो रही है. Moving in the straight line, no change in the direction. Both will be equal. Displacement upon time, a total displacement upon total time. This will be x plus x. Time will be x upon v1. First one will be 80. Second one will be x upon v2, 120. If you solve it, ये 2 into 80, LCM लेके ऊपर भेज दो ये टर्म, नीचे कितना हो जाएगा 80 plus 120. So this is 2 into 80 into 120 divided by 200. तो ये कैंसिल हो गया आपका, दोनों जीरो चले गए और ये 2 भी चला गया. 96 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? So it is similar to the previous question जो हमने किया था ना, that 2v1 v2 upon v1 plus v2 आया था. Don't simply do it like this. ऐसे मत करो. देखो 120 plus 80 plus 120 by 2, इससे 100 आ रहा है, which is wrong. Situation is different. You have to stick to the basics. Total displacement upon total time बोल सकते हैं. So total displacement will be x plus x. Time will be t1 plus t2. Time कैसे निकाला हमने? Displacement को velocity से divide कर दिया. किलोमीटर पर आवर में ही रहने दिया. We are not converting into meter per second. Final answer will also be in kilometer per hour. बोलिए इसमें कुछ डाउट है किसी को? You can just ask your doubts if you still have. I can just repeat again. बोलिए. नोट कर लो फिर. Then Yes, sir. okay, then let's see further. This we did it yesterday. ये क्वेश्चन हो चुका है पहले. एक्सीलरेशन वाला क्वेश्चन था आपका ना. -9. What is the answer? Sir, 100 meter per second square. -9 meter per second. -9 नहीं लिखेंगे because magnitude बताइए separate and direction separate, because somebody may be you are taken this diagram finally ना. अगर if I give you batsman is standing this side and ball is coming like this and going,
the plus x, some of you will get minus, some of you get plus. So competitive examination, they will never give you a minus unless they give you the direction. Okay, take so and so direction plus and so and so direction minus. Otherwise, options will be given like this: so and so magnitude, and in front of batsman or behind the batsman, ऐसे कुछ देंगे. तो मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं देते कभी भी, जनरली 99% है. तो हम मॉड निकालेंगे इसका. तो 100 इज रॉन्ग. कितना? यू टोल्ड 100, somebody told 100. One velocity is positive. देखो, can you see? One is positive, other one is negative. डायरेक्शन अभी अपोजिट है. अगर v1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो v2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा ना. तो v1 इज हाउ मच? इनिशियल वेलोसिटी इज 144. तो 144 मल्टीप्लाइड बाय 5/18. ये कल डिस्कस कर लिए. कितना आ रहा है? यस, 40 मीटर पर सेकंड और दूसरी वाली हाँ. 50 मीटर पर सेकंड. प्लस या माइनस? देखो, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी अभी. माइनस. दिस इज, हाँ, दिस इज अपोजिट. तो डायरेक्शन प्लस, सेकंड वन विल बी माइनस. तो 100 and how much? 80 multiplied by 5/18 again. It will be 50 minus 50 meter per second. दोनों वेलोसिटी, बिकॉज टाइम नाउ वी आर. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? डिस्प्लेसमेंट वाज गेटिंग कैंसल्ड, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया था यहाँ पे. जैसे ये ओके, ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, इसमें क्या टाइम से डिवाइड भी करना है. देयरफॉर ऑल शुड बी प्रॉपर इन प्रॉपर सिस्टम ऑफ यूनिट. यहाँ पे टाइम है, टाइम को भी सेकंड्स में करना है. टाइम इज इन व्हाट इज कॉल्ड मिली सेकेंड. तो 100 मिली सेकेंड, 100 into 3 10 to the power minus 3, so that is 0.1 second. ठीक है? Getting? Now average acceleration is nothing but v2 minus v1 upon t. यहाँ पे हम लोग मॉड लगा लेंगे because they have not given the diagram. तो इसलिए somebody may take bet this side. ऐसे ले सकते हैं वो. उसका v1 नेगेटिव होगा, v2 पॉजिटिव होगा. तो इसलिए क्या करते हैं? मॉड ले लो. आंसर मैग्नीट्यूड विल बी सेम फॉर एवरीबडी देन. तो v2 इज -50 minus v1 is 40 डिवाइड बाय टाइम, दैट इज 0.1. तो ये 90 हो गया. 90 अपॉन 0.1 एंड दिस इज 900. या फिर मॉड नहीं लेना है तो नो प्रॉब्लम, जस्ट लेट इट बी लाइक दिस. फिर हम बाद में सेपरेट करके लिखेंगे. नाउ इट इज कमिंग जस्ट -900 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो माइनस डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली, इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन. बैट्समैन इधर खड़ा होगा. प्लस वाली ये है. तो देयरफॉर इसको सेपरेट करके लिखेंगे. देयरफॉर 900 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन. बैट्समैन की सामने की डायरेक्शन माइनस है. देखो, बॉल इज गोइंग दिस साइड, ही इज हिटिंग दिस साइड. इधर हमने माइनस ली है और ये वाली प्लस ली हुई है. तो इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा. एक्सेलरेशन इज 900 एंड डायरेक्शन इज इन फ्रंट ऑफ बैट्समैन. माइनस आ रहा है. और वैसे भी कॉमन सेंस से भी हम बोल सकते हैं, अगर आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही तो बैट्समैन किधर फोर्स लगा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैट्समैन फोर्स लगा रहा है ना. तो देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ बैट्समैन. ऑलराइट, बोलिए एनीथिंग. यहाँ पे मिस्टेक होती है. व्हाट यू डू, दोनों तुम लोग प्लस ले लेते हो इसको. फिर यहाँ पे डिफरेंस में क्या आएगा? 10 आ जाएगा. 10 डिवाइडेड बाय 0.1, इसीलिए 100 आ जाएगा. तो 1 was feeling 100 और तुमने v1 v2 दोनों पॉजिटिव ले लिए बिकॉज यू नो. I made that Yes. mistake. हाँ, बिकॉज यू नो कि डायरेक्शन चेंज हो गई है वेलोसिटी की.
one of them has to be minus. ठीक है, इसमें अगर मैं ये पूछूं आपको, इसी क्वेश्चन में, बैट्समैन इज नॉट हिटिंग इन फ्रंट, अपोजिट डायरेक्शन नहीं, 90 डिग्री, सपोज उसके पास ऐसे बॉल आई, उसने कट लगा दिया इधर, 90 डिग्री पे कट मारा, है ना, ऐसे इधर कट कर दिया 180 की स्पीड से, और कितनी स्पीड से आ रही थी, 144 किलोमीटर पर आवर, तब क्या होगा फिर, which one will be plus, which one will be minus? वेक्टर्स यूज करेंगे. हाँ, अभी हम प्लस माइनस नहीं बोल सकते, नाउ वी हैव टू टेक द वेक्टर, वेक्टर सीखना पड़ेगा इसके लिए, ओनली सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, बट एट एनी अदर एंगल इंक्लूडिंग 90 डिग्री एंगल, vectors are required, vector knowledge is required, that will be done after this chapter. ठीक है, done, everybody is clear about this question, or any confusion coming, any doubt coming, बोलिए. Clear, sir. Okay, we'll see further what is next, we'll see. ये भी क्वेश्चन था ना, चलो इसको देखते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रू और फॉल्स. With zero speed at an instant may have non-zero acceleration at that instant. They are talking about that particular instant. True. To example, can you give the example? जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तब वो Yeah. जब मैक्सिमम हाइट Yes, अटेन yes. कर लेता है तब वेलोसिटी. Clear. Okay, right. कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बॉल थ्रोन अप एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो. तो फर्स्ट वन इज ट्रू. What about second one? With zero speed, फॉल्स. non-zero velocity. Can anybody give me the correct definition of speed? अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, but I wanted to know from you. ये जो एवरेज स्पीड नहीं लिखा है ना, they are not mention average speed. हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. yes, very correct, very correct. वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इंस्टेंटेनियस. अच्छा, व्हाट इज दिस देन? ये क्या है फिर? इज इट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और समथिंग एल्स? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Yes, physics में if you don't word the use average, है ना, तो they are instantaneous value. यही जो velocity है ना, this is instantaneous velocity. इसका जो mod लेते हैं ना, that is called speed. ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, है ना. तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो स्पीड भी जीरो होगी, ये नॉन जीरो नहीं. अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, बिकॉज बोथ आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. अगर वेलोसिटी जीरो होती है तो स्पीड भी जीरो होती है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी. देखो, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो और नॉन जीरो, है ना. एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, एवरेज स्पीड मे नॉट बी जीरो, बोथ कैन बी, one can be zero, other can be non-zero, but इसमें both has to be same. अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होगी, बिकॉज इसी का जो वेलोसिटी का मॉड होता है वो स्पीड होता है. इसमें इक्वल टू या लेस देन नहीं होता, इसमें एवरेज में लेस देन होती, एवरेज वेलोसिटी इज लेस. यहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में. तो ये पॉइंट अभी होने का है इनफैक्ट, बट फिर भी इसमें वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ velocity is called speed. तो अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होनी पड़ेगी, तो ये फॉल्स है. व्हाट अबाउट सी? विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन. कांस्टेंट स्पीड में जीरो एक्सेलरेशन होगा.
True. ट्रू और फॉल्स? True, sir. True, sir. ट्रू है? आई डाउट। अगर देखो चलो, अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। फिर यहाँ तो उन्होंने जीरो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। सर अगर बोलो। स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो फिर या कांस्टेंट या ऊपर, वेरी करेक्ट, ऊपर पढ़ना है। ऊपर क्या लिखा है देखो, व्हाट दे हैव रिटन, वन डायमेंशन मोशन के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर ये नहीं लिखा होता, इफ नथिंग इज रिटन, देन दिस विल बी फॉल्स। नाउ ऊपर उन्होंने मेंशन किया है, वी आर टॉकिंग अबाउट वन डायमेंशन मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, तो इट कैन नॉट टर्न नाउ, टर्निंग इज नॉट अलाउड नाउ। इसका मतलब इट हैज टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन। तो उस समय क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जो है जीरो होगा। तो ट्रू। व्हाट अबाउट दिस वन, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। कल हम लोगों ने काफी इस पे टाइम दिया था। फॉल्स। हाँ फॉल्स, बिकॉज अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो इट विल डिक्रीज, स्पीड विल कम डाउन। फॉल्स। स्पीडिंग अप के लिए क्या होना चाहिए, स्पीडिंग अप के लिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ शुड बी इन सेम डायरेक्शन, whether negative acceleration or positive acceleration doesn't make any difference. वेलोसिटी भी वही होगी, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन है नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, तब स्पीड अप होगी। बट वी डोंट नो वेलोसिटी किधर है इसमें, है ना। ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस इस तरफ है ना, कार इज गोइंग दिस, ओके, कार इज गोइंग दिस साइड, वेलोसिटी इधर है, ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने से एक्सेलरेशन अपोजिट में आता है, तो स्पीड कहाँ बढ़ेगी, कम हो जाएगी ना। could you get this example here? Positive value of acceleration, suppose we take this direction positive, car is going this side with the velocity, brakes are applied, जब ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, बट ब्रेक लगा विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो स्पीड अप नहीं होगी, स्पीड डाउन हो जाएगी, अप विल नॉट बी देयर, डाउन हो जाएगी। दिस इज नॉट ट्रू, फॉल्स। These are the very that good questions. In fact, there is very fine difference. You have to just understand all the points very clearly. Sir, Yeah. sir, मुझे first A part नहीं समझा। ये part देखते क्या देखो, with zero speed, okay, if you throw the object upward, you throw the object upward, ठीक है, highest point पर v will be 0, but acceleration तो है नीचे ग्रेविटी का, है ना। तो with zero speed at an instant may have non-zero acceleration, तो yes, zero speed है but acceleration non-zero है, नीचे की तरफ है, highest point of the journey of the object thrown up. पेंडुलम में देखो, in case of pendulum, लैब में यू कैन सी द पेंडुलम विल बी देयर, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम पॉइंट पर, बट एक्सेलरेशन इधर होता है, तो वही तो उसको पेंडुलम को वापस लाता है, फिर इधर मीन पोजीशन पे लेके आता है। तो इन केस ऑफ पेंडुलम आल्सो एट एक्सट्रीम पॉइंट velocity is 0 but acceleration is towards the mean position, therefore pendulum comes back towards the mean position, वर्टिकल हो जाता है, फिर आगे निकल जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट होगा, फिर उसको वापस आना पड़ेगा।
गॉट इट? फर्स्ट पार्ट सही है? Yes, sir. ओके, और क्या था? हाँ ठीक है. नाउ फॉर knowing, for defining what is the speed, what is the velocity, what is the acceleration, we have to learn little bit of maths. Then only we can define what is the acceleration or what is the velocity, what is the speed. All three are instantaneous values. अभी तक हम लोगों ने एवरेज वैल्यूज सीखी है. तो लेट अस डू दैट. डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, थोड़ा मैथ्स पढ़ते हैं अभी. इसके लिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग